Hello, students. Welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is auxiliaries and modals. In today's session, we will first about auxiliaries and then we will understand about modals. Let us first understand what are auxiliaries. Auxiliaries are also called as helping verbs. They are also called as helping verbs. They are used in sentences to assist the sentence, to make the sentence impactful. Auxiliaries is the second word of helping verbs. They are used to assist the main verb. हर सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है टू डोनेट व्हाट द एक्शन इज हैपनिंग. कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस में जब ये बताना होता है कि कुछ काम हो रहा है, तब हम वर्ब का यूज करते हैं. मेन वर्ब के साथ कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है. मेन वर्ब इज नॉट सफिशिएंट समटाइम्स इन द सेंटेंसेस, सो वी विल यूज helping verbs. These helping verbs are called as auxiliaries. Let's start the session. In some sentences, a single verb is not enough to complete its meaning. Sometimes it happens that we used verb, but it is not enough to complete the sentence. For example, when we are making sentence in continuous tense, interrogative or negative. So we need more verbs. We need helping verbs. They help the main verbs. Helping verbs जो होते हैं वो main verbs को help करते हैं. Let us understand some of the helping verbs. बी हमारा सबसे मेन टाइप का हेल्पिंग वर्ब होता है. बी के ही पार्ट होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. ये सारे ही बी के पार्ट होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्पिंग वर्ब में, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं. यू मस्ट आर सीइंग ऑल ऑफ दीज verbs since your childhood, right? So these are auxiliary verbs which are used as helping verbs in the sentences. The verbs be, have, do is used with ordinary verbs to make sentences, make tenses, passive forms, question, negative, etc. Example, they were running fast. So वो fast run कर रहे हैं. Running is already a verb here. Run is a verb, but you need were to complete the sentence. Do you know him? So, क्या तुम उसे जानती हो? Do is the helping verb here. Helping verb is used to assist the main verb. Let us understand the be forms. The auxiliary be is used in the formation of continuous tense. जब भी continuous tense हमें बनाना होता है, तब हम is, am, are, was, were का यूज करते हैं. तो हमेशा हमारे को कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन में इसका काम आता है. ही इज वर्किंग, आई वॉज राइटिंग. जो काम हम अभी कर रहे हैं, एट द मोमेंट ऑफ टॉकिंग, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मुझे टीचिंग इज ऑलरेडी अ वर्ब. टीच करना एक वर्ब है, लेकिन उसके साथ मुझे एम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन में हम इसका यूज करते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, अगर हमें पैसिव में सेंटेंस को बोलना है, sentences are used in active and passive both. So if we have to use in passive, we will say the gate was opened. opened के साथ हमने यूज किया. infinitive के साथ भी यूज होता है. I am to see him tomorrow. We are to be married next month. To donate command, अगर आपको कोई command देनी है, you are to write your name at the top of each sheet of पेपर. आपको अपना नेम टॉप ऑफ ईच शीट लिखना है पेपर के. नेक्स्ट कम्स अप हैव, इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस. जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ईच टेंस इज अ 4 टाइप्स, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तब हमें हैव का यूज होता है. हैज एंड हैव आर द 2 फॉर्म्स ऑफ हैव. ही हैज वर्कड, he has been working here for 5 years. Has been working. This is the part of perfect continuous. Continuous के साथ भी, perfect continuous के साथ भी आप देख सकते हैं has और have का use होता है. Have is used with infinitive to indicate obligation. Infinitives के साथ भी use होता है. He has to move to furniture himself. He has to move the furniture himself. Next comes up the past form had to, which is used to express the obligation in the past. So have के हमने 3 forms देखे, which is has, have, had, to. These are the auxiliary verbs of have.
ये ऑब्लिगेशन होता है कि पास्ट की कोई बात होती है तब हम हैड का यूज करते हैं, हैज और हैव की जगह हैड का यूज करते हैं. आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि मुझे वहाँ पे 5 बजे तक पहुँचना है. सो हैड टू बी देयर. In negative questions, have to and had to are used with do, does and did. Next comes up do. Do की 3 forms आपको पता ही है. Do की 3 forms जो होती हैं, जो helping verbs के लिए भी यूज होती हैं, that is do, does, did. Here you can see the form negative and question in the simple present, simple past. Question form करने के लिए यूज होती है do you know him, do you work with him, these type of question. He doesn't work here, he didn't work. Does he work, did he work. अगर he didn't work का आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, did he work, तो did का आपको क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हुआ है. To avoid repetition of a previous verb, repetition को avoid करने के लिए do you know him, yes I do. अगर आप बोलो yes I know him तो repeat हो जाएगा ना, no repeat हो जाएगा यहाँ पे. So you can use yes I do. You met him, didn't you? तो क्या तुम उससे मिले थे, क्या नहीं मिले थे. So we will use did. Do is also to emphasize the affirmative nature to a statement. You do look pale. मतलब जब आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ नेचर से रिलेटेड, सो आप इसका यूज कर सकते हैं. इन imperative do make a request. रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है. सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, सो वहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं. डू बी क्वाइट, oh do come, it's going to be such a fun. या प्लीज कम, जब आप इम्पेरेटिव आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इसको बताया गया. इन सम केसेस डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड. कुछ केसेस में जो डू होता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. अगर मेन वर्ब नहीं है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ मेन वर्ब. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मोडाल्स के साथ यूज नहीं होते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोडाल्स. मोडाल्स के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं. दे आर ओनली टू असिस्ट द सेंटेंस. मोडाल्स भी सेंटेंस में लगते हैं सेंटेंस के बारे में बताने के लिए, फॉर्मेशन को बताने के लिए, ज्वाइन करने के लिए. तो आप उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज नहीं कर सकते. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंपल्सरी when main verb is there. You can use only when main verb is there, and you cannot use when modal is there. Can, could, shall, should, would. अगर ये वाले word sentences में हैं तो आप auxiliary verbs का use नहीं करेंगे. Next comes up modals. As I told you, can, could, may, might, will, shall, ought to are modal verbs or modals. They are used before ordinary verbs to express meaning such as permission, obligation, ग्रांट, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा. ये सारी जो चीज़ें होती हैं जब आपको कोई सी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखानी है या आपको कुछ नेसेसिटी बतानी है, ऑब्लिगेशन दिखाना है, परमिशन दिखाना है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, तब आप मोडाल्स का यूज़ करते हैं. सो these words have different meanings and use different when we have to tell about the different meaning or different situations. Need and dare can be sometimes used like normal modals. Modals are often included in the group of auxiliaries. कभी कभी इसे auxiliaries के साथ ही फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन modals are sometimes different. Let us understand use of shall. Shall is used to refer an action in the simple present tense. It is used for first person. Shall future tense के बारे में जब बात होती है तब use किया जाता है. I shall go, I shall bring back home. So all these are used in future. Shall is also used for second and third person to make a promise, command and threat. अगर आपको किसी को कुछ promise करना है तो आप इस shall का यूज कर सकते हैं. कमांड के लिए यूज कर सकते हैं, थ्रेट के लिए यूज कर सकते हैं. आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं. दे शैल ब्रिंग हिम बैक, दे शैल डू व्हाट देयर लीडर्स से. उनको वो करना चाहिए जो उनके लीडर्स कहते हैं, तो दिस इज अ कमांड. Next comes a will. Will is used for first or second person to refer an action in the simple present tense. Simple present tense की जब भी बात होती है तो आप will और shall का यूज कर सकते हैं. It is very common. Next comes up can और could. Can और could दोनों की ही immense यूजेस होते हैं. आप हर सेंटेंस में इसको ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं. जब भी पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, परमिशन हो, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी को भी रेफर करता है, जैसे द प्रिंसेस कैन बी ब्रॉट डाउन. एबिलिटी
कैन ही स्पीक बोथ स्पेनिश एंड लैटिन फ्लुएंटली? अगर उसकी एबिलिटी है तो आप कैन यूज कर सकते हैं. आई कैन गो देयर, दिस इज माई एबिलिटी. आई कैन स्टडी स्पेनिश, तो आप इसके लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं. परमिशन लेना हो, कैन आई लीव द रूम? दिस इज यू आर टेकिंग परमिशन, तो आपने यहाँ पे कैन का यूज किया, विच इज अ मोडाल. अगेन कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है could. It is also used to express the ability, a wish, something or permission. Past form में use होता है. This is the more polite form. Can is the normal form. She could sing well when she was young. मतलब ये उसकी एबिलिटी है कि जब वो छोटी थी तो वो अच्छे से गा सकती थी. एबिलिटी का आपको बताया कि पास्ट टेंस में आप यूज कर सकते हैं. If only I could fly. Could you lend me your dictionary please? यहाँ आप देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं. मे, माइट एंड मस्ट. मे एंड माइट आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, परमिशन. जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, डाउट है, अनसर्टेन है, सो आप मे और माइट का यूज करते हैं. देयर मे बी हॉलीडे टुमारो. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. मे आई आस्क योर नेम. क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? सो देयर इज द परमिशन. आप उससे परमिशन लेके उसका नाम पूछ रहे हैं. द नेक्स्ट इज मस्ट, विच इज यूज टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी और सर्टेनिटी. जो काम आपको करना ही करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होता है जिसके अंदर आपकी ड्यूटी होती है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं. ओल्ड मैन मस्ट गेट लव एंड केयर. ओल्ड लोगों को लव और केयर जरूर मिलनी चाहिए, सो यहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे. ब्राउन मस्ट गिव अप स्मोकिंग. सो जो ज़रूरी है, कंपल्शन है, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट इज ऑट टू, विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन एंड डिज़ायरेबिलिटी. जो मोरली आपको करना चाहिए, इट्स नॉट फिक्स कि आपको करना ही करना है, बट मोरली विच सपोर्ट्स यू, उसके साथ आप ऑट टू यूज़ करते हैं. जो आपकी ड्यूटी है उसके साथ भी आप ऑट टू यूज़ करते हैं. वी ऑट टू हेल्प द सुनामी विक्टिम्स. हमें करनी चाहिए सुनामी विक्टिम्स की हेल्प, सो वी विल यूज ऑट टू. शी ऑट टू बी ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड्स फॉर देयर हेल्प. उसकी हेल्प के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, सो दैट इज ऑट टू. Next is need, use of need. Need is used to express necessity. ये necessity को express करती है, need को express करती है. So need use होता है you need to work sincerely to get promotion. तुम्हें promotion लेने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम अच्छे से काम करो, तो हम need का use करेंगे. Negative में भी इसका sometimes use होता है when there is no need or no necessity. Do they need to carry arms? क्या उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की? या We need not take her to the doctor. हमें ज़रूरत नहीं है उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए. इन द नेक्स्ट सेंटेंस आपने देखा कि क्वेश्चन के लिए भी यूज होता है. एंड द लास्ट मोडाल ऑफ टुडेज सेशन इज डेयर. इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस, डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस करेज, बोल्डनेस, ऑडेसिटी. जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत करेजियस है, आप में बहुत हिम्मत है, उसके लिए आप डेयर का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड चीज़ों के लिए. Cooper will dare to go alone to a haunted house at night. आप देख सकते हैं उसको डेयर किया गया है और वो डेयर कर रहा है कि उसके अंदर इतनी करेज है, वो इतना करेजियस है कि वो हॉन्टेड हाउस अकेले जाएगा रात को. नेगेटिव सेंटेंस में भी डेयर का यूज होता है टू एक्सप्रेस फियर, डर को दिखाने के लिए. लकी डेयर नॉट गो टू द ग्रेवयार्ड अलोन एट नाइट. बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए अलोन एट नाइट टू द ग्रेवयार्ड, सो डेयर नॉट टू गो यहाँ पे यूज हुआ है. That's all, students, for today's session. Auxiliaries are helping words. Is, am, are, was, were, have, has, had to. You all knew all this. Do, does, right? Next is modals. Can, could, may, might. Both are not used together in a sentence. That's all for today's session.